नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And in this class we are going to discuss article 122. So I come to now 122. See this again, please see the slide, that would be better. This is article 122, courts not to inquire into proceedings of parliament. So this is the validity of any proceedings in the parliament. So we are talking about the proceedings in the parliament. So we are talking about the validity of any proceedings in the parliament. You can say parliamentary proceedings. The validity shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure. This is, please see this. What is this? पढ़वा दिया मैंने आपको, अब मैं आपको समझाता हूं। See क्या, if there is any irregularity of the procedure, इसको हाईलाइट समझिए ढंग से क्या मतलब। if there is any irregularity of the procedure, the procedure to be followed was not followed properly as per the set standards, the procedure was not followed. This is the allegation, that is why we are using the word alleged irregularity. It is alleged, ये आरोप है क्या कि देयर वॉज सम इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर। कौन से प्रोसीजर में? इन एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। दिस मे बी एनी प्रोसीडिंग्स, इट मे बी विद रिगार्ड टू डिस्कशन ऑन द बिल, इट मे बी विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इट मे बी एनी प्रोसीडिंग, बट द एलिगेशन इज दिस that there was some kind of irregularity. So this article 122 prohibits what? The validity of the such proceedings shall not be called in question. उन पर प्रश्न नहीं लगाया जाएगा इस ग्राउंड पर। समझ में आता ही नहीं? देखिए सी, मैं एक चीज वेरीफाई करना चाहता हूं, इसको देखिए आप लोग, इसमें थोड़ी सी ड्राफ्टिंग मिस्टेक है। यू सी द ड्राफ्टिंग मिस्टेक। What is the heading? Heading is what? Courts not to inquire into the proceedings of parliament. So it means this is related to the subject that courts are prohibited from inquiring into certain matters. So there is a provision with regard to courts now. पहले पार्लियामेंट के लिए था, पार्लियामेंट will not discuss the conduct. Now the courts will not inquire. लेकिन इन्होंने क्या किया? वन में इसकी लैंग्वेज में इन्होंने कहा the validity shall not be called in question. Where? ये लगाना भूल गए। इनको करना चाहिए था the validity of such proceeding shall not be called in question in any court. इस तरह कोर्ट को मैंने सोचा शायद मैंने गलती ना कर दी लिखने में, तो नहीं, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ देयर एक्ट। तो सिंपल सी बात है, इसको समझाता हूं कि इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर के आधार पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ द इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर, नो प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। उस पर आप प्रश्न नहीं लगाएंगे, उसको ये नहीं कहेंगे दिस इज इलीगल, उसके जो आउटकम है उसके बेस को उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते उस पर। बात समझ में आ गई? आई होप कि आ ही गई होगी, वरना पूछ लेंगे क्वेश्चन आप। नो प्लीज सी द नेक्स्ट। दिस इज नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट in whom powers are vested by or under this constitution for regulating procedure, the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers. So I read it for you. Now आप समझिए इसके हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस ऑफिसर की बात कर रहे हैं। कौन ऑफिसर है ये? कौन ऑफिसर है ये? No, he is the officer who is exercising powers for what? Regulating the procedure of the parliament. इतना समझ लीजिए बस। ये वो ऑफिसर है। अब इसको उन्होंने स्पीकर, ये क्यों नहीं कहा कि स्पीकर और चेयरमैन? बिकॉज
At times he may be the speaker, or in his absence some other member may be there. Same may be the case, he may be chairman, डिप्टी चेयरमैन और एनी अदर मेंबर। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कर रहा है, ओके, इन दैट कैपेसिटी, डेफिनेटली ही विल हैव सम पावर्स, है ना, फॉर व्हाट, टू मेंटेन द डिसिप्लिन विद इन द पार्लियामेंट, टू रेगुलेट द प्रोसीडिंग्स, उस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए, वहां पर शांति व्यवस्था मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, उनके पास कुछ पावर्स होंगी। Now he is exercising those powers. So उनको 122 की क्लॉज 2 में एक इम्यूनिटी दी गई है। इम्यूनिटी इन द सेंस कि he shall not be called, he shall not be subject to the jurisdiction of any court, his conduct cannot be called in question in any court, he will not be liable before the any court to answer what he did, to be complete absolute immunity है इसको यहाँ इन कोर्ट पर, ये whatever he is doing in exercising of the powers। तो फिर आप कहेंगे फिर उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगा? If he is going beyond the mandate of the rules, then he can be removed as per the procedure। उसके रिमूवल की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, बट यहां पर पार्लियामेंट की सोवरेनिटी का क्वेश्चन है। जुडिशरी शुड नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसी कंसर्न इस पॉइंट पर, इसलिए ये प्रोसीजर थ्रू आर्टिकल 122 अडॉप्ट किया गया है। तो आई होप कि इट विल वी क्लियर टू यू, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए समझा चुका, इसी कॉन्ट्रोडिक्ट समझिए, समझे विजय, समझाते हैं क्या है, समझिए। देर वो, ये तो इंग्लिश हो गई, भोजपुरी मुझे आती नहीं है तो आम भाषा में समझाते हैं। देखिए विजय कुमार जी हैं, जो विजय कुमार हैं, इनको लगा कि नहीं, फार्मर्स जो बिल है, फार्मर्स बिल है ये, दीज आर एंटी पीजेंट्स, है ना, किसान विरोधी बिल हैं, और इन्होंने तमाम जो है, इन्होंने अपना पर्चा फाड़ो और ये करो, वो सारी कार्रवाई शुरू कर दी। तो उसके लिए हम जाएंगे, इसको समझाते हैं पहले 122 की क्लॉज 2 में, समझे। उन्होंने कहा, स्पीकर महोदय ने, या जो चेयरमैन थे उस समय, या जो भी कोई व्यक्ति वो उस समय उसको पीठासीन अधिकारी था, उन्होंने बुलाया जो गार्ड्स है वहां पर, है ना, उनको बुलाया कि इन भाई साहब को इज्जत सहित, या इज्जत से नहीं माने तो जैसे ही माने इनको बाहर पहुंचा करके आओ। अब भाई साहब विजय को गुस्सा आ गया कि मेरी तौहीन होगी, वो भी कैमरास, नेशनल टीवी सब देख रहे हैं मेरे को। नाउ यू अप्रोचेस टू द कोर्ट कि नाउ आई वाज इंसल्टेड, या फिजिकल फोर्स वाज यूज्ड एंड दिस दैट, आईपीसी सेक्शंस लगाए जाए, इट कॉज हर्ट टू मी सो मैनी, you want to initiate criminal proceedings against that presiding officer, जो व्यक्ति पीठासीन अधिकारी है उसके विरुद्ध आप कोई आपराधिक कार्यवाही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपको पार्लियामेंट से बाहर फेंकवाया, क्योंकि आप वहां के मेंटेन नहीं कर रहे थे, ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे थे। नाउ वेदर ही दैट काइंड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इज मेंटेनेबल और नॉट, एब्सोल्युटली नो। No officer shall be subject to the jurisdiction of any court। किसी भी कोर्ट में चले जाइए, आपकी इस पॉइंट पर सुनवाई नहीं हो सकती। दिस इज द एब्सोल्यूट इम्यूनिटी गिवन टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये है 122 का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट क्या था ये भी समझ लीजिए, ये दूसरी तरीके की बात है। नाउ यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए दीप्ति शर्मा, तान्या शर्मा और दीप्ति मेहता, दीप्ति राजपाल, कई सारे तमाम लोग, ये पॉलिटिशियंस लोग हैं। इन्होंने कहा कि नाउ द मोदी गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी एंड नाउ देयर शुड बी वोटिंग फॉर दैट। नाउ द डे ऑफ वोटिंग हैज कम। वोटिंग हुई, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया। तो नाउ मोदी गवर्नमेंट विंस द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट these all politicians led by Deepti Sharma says now there is a foul play in the proceedings। Why? Because the procedure was not followed as per the set rules। नियमों का उल्लंघन हुआ है, वोटिंग सही तरीके से नहीं कराई गई, नियमों सहित कराई गई होती, क्योंकि हमारे 5 मेंबर्स वॉशरूम गए थे, उसी समय इन्होंने करा लिया, वेट नहीं किया, 5 वोट तुम्हारे ऐसे ही कट गए। वॉट एवर एलिगेशन, ये फनी बात थी थोड़ी सी। Now you are challenging that proceeding in parliament
आप उस जो संसद की कार्रवाई को चैलेंज कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? कोर्ट में कर रहे हैं। किस ग्राउंड पे कर रहे हैं? कि देयर वॉज इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर, देयर वॉज इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर, जो नियमों का उल्लंघन हुआ है, अनदेखी हुई है, इस बात पर कहे हैं। तो कोर्ट कहेगी साहब नमस्कार, आप आए, अच्छा लगा, पर हम आपके मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज 122 क्लॉज 1 prohibits us that the validity of such proceedings cannot be challenged, cannot be called in question. तो दिस इज 122 क्लॉज 1। इसको मैंने दूसरे तरीके से समझाया आपको। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे एनओसी देंगे आगे बढ़ने का। सो 79 से हम लोग यहां तक आ गए। देखो मैंने बहुत डिटेल में, बहुत पेशेंस के साथ चीजों को करवाया है। आई बिलीव कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बट फिर मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको जज नहीं बना सकता जब तक कि आप खुद बनाना चाहें। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अपनी डिटर्मिनेशन को बना के रखिएगा। अपने आप से कहिए कि हाँ मुझे जज बनना ही बनना है, बस इतना भी कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए अब अगले वीडियो से शुरू करते हैं, अगली पढ़ाई शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।